السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس دوسرا باب سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے پہلے چیپٹر کو یعنی ارکان اسلام کو ہی ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے اس کے ایم سی کیوز کو دیکھنا ہے، وہ ہائی لائٹ میں کر دوں گی، آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا یا آپ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آئے گا ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹا کویسچن ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں گے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت، جو ارکان اسلام میں سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کلمہ شہادت۔ ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ ہیں، ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا کلمہ انہوں نے یہاں پہ دے دیا ہے، اگر آپ اس کو لکھ دیں گے بغیر اعراب کے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور میں اس بات کی آگے ہے توحید کے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ عقیدہ توحید کی انسانی اثرات پر کیا، زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں چند اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گو بظاہر توحید اور رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے، نہ رسول صلی اللہ کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کا مفہوم ہے، رسول پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کویسچن ہے۔ میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہنی انسانی کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے حقیقی گواہی۔ حقیقی گواہی، اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو پیراگراف ہے اس پر نوٹ لکھنا آ جاتا ہے کہ نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ حقیقی گواہی پر نوٹ لکھیں، یہ بھی آ سکتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ شہادت کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور اس دل کی تصدیق کو عملی صورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کے دل کی تمام خواہشات اور شریعت اسلامی کی تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ میں کبھی عربی پڑھ دیتی ہوں اور اکثر آپ کو ترجمہ ہی پڑھایا جاتا ہے، آپ ترجمہ پڑھ لیا کریں اور اس کو یاد کر لیا کریں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال بن جائے گا۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حق کا پیروی کیا اہتمام کیا تو انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے، لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ نماز کیا ہے، نماز کے بارے میں بتائیں۔ نماز پر نوٹ لکھیں، یہ اس طرح سے آ جائے گا۔ یہ الگ الگ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں شارٹ کویسچن نہیں بنے ہوئے، تو یہ آپ نے اسی میں سے بنانے، اس لیے ریڈ کروا رہی ہوں تاکہ درمیان میں اگر کوئی آ جائے تو آپ اس کو
देख लें। इस्लाम एक मुकम्मल और जामिया निज़ाम हयात है। वो अपने पैरोकार को चंद एतकाद ही दे देने पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी को इन एतकाद के सांचे में ढालने के लिए इबादत का एक निज़ाम मुकर्रर करता है, जो नमाज, ज़कात, रोज़े और हज पर मुश्तमिल है। इसके पहले और सबसे अहम जुज़ नमाज के बारे में अल्लाह ताला के इरशादात में से एक अहम इरशाद है, अकीमुस्सलाता वला तकूना मिनल मुशरिकीन। ये सूरह रूम की 31 आयत है। तर्जुमा है, कायम रखो नमाज और मत हो शिरक करने वालों में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस नमाज की ताकीद पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक है नमाज, यहाँ पे तर्जुमा है, दीन की असल बुनियाद अल्लाह और रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर देना है और इस इमारत का स्तून नमाज है। नमाज की ताकीद किन जगहों पर की गई है? ठीक है, यह आपने सवाल कर लेना है। और इस तरह है यहाँ पे, नमाज चूँकि दीनी तरबियत का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हर उम्मत पर फ़र्ज़ रही। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को नमाज की तलकीन करते रहे। कुरान बताता है कि नमाज कायम करने से फ़लाह पाएंगे और इसे तर्क करने वाले ज़िल्लत और ख्वारी का शिकार होंगे। एक आयत में मज़कूर है कि जब अज़ाब के फरिश्ते जहन्नमियों से अज़ाब पाने की वजह दरियाफ़्त करें तो वो अपने जहन्नम में फेंके जाने की वजह ये बताएंगे। तर्जुमा, वो बोले हम न थे नमाज पढ़ते। ठीक है, यानी हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह मुदस्सर की 43 आयत है। दिलो ज़ुबान से अल्लाह ताला की माबूद तस्लीम करने के बाद सबसे अहम हुक्म नमाज की अदायगी से नमाज की अदायगी है। नमाज की अदायगी से इनहराफ एक तरह का अल्लाह ताला को माबूद मानने से इनकार के बराबर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा है तिरमिज़ी शरीफ का, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने काफराना रविश इख्तियार की, यानी उसकी जो आदात हैं वो काफराना है। नमाज कुर्ब इलाही का सबसे मौसर वसीला है। नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा है, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो गोया अपने रब से चुपके चुपके बातचीत कर लेता है या करता है। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। इस अहमियत के पेश नज़र क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तर्जुमा इसका ये है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे है नमाज के फ़वाइद लिखें, ये भी आ जाता है अलग से सवाल। अब यहाँ पे हम नमाज के फ़वाइद चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कभी आ जाता है कि 5 फ़वाइद लिखें शॉर्ट में, और कभी 2 भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला के सामने बंदे के दिन में 5 मरतबा हाज़िरी इसके दिल में ये एहसास ताज़ा रखती है कि वो अपने अल्लाह का बंदा है। बंदगी का ये एहसास मतवातर नमाज पढ़ने से एक मुसलमान की फ़ितरत सानिया बन जाता है। वो इसकी पूरी ज़िंदगी तामील अहकाम का अमली नमूना बन जाती है। नंबर 2 पे है, दिन में 5 मरतबा कुर्ब इलाही का एहसास मुसलमानों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला हर वक्त इसके साथ है। ये कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। अल्लाह ताला के साथ होने का एहसास उसे गुनाह के कामों से रोकता है और इसके दिल से हर किस्म के खौफ और गम दूर कर देता है। नंबर 3 पर है, नमाज के दरमियानी वक्फे में नमाज़ों के असरात जारी रहते हैं। नमाज के बाद गुनाह का ख्याल आए तो बंदा सोचता है कि अभी तो अपने रब अल्लाह से दुआ करके आया हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, और अभी गुनाह का काम करूँगा तो कुछ देर बाद फिर इसके सामने क्या मुँह लेकर जाऊँगा। ये चीज़ इसे मुस्तक़िलन गुनाह से रोके रखती है। नंबर 4 पे है, अल्लाह ताला की इबादत और इसकी खुशनुदी के हसूल के सिलसिले में 5 मरतबा बाहम मिलने वाले अफराद के दरमियान मोहब्बत और यगानत पैदा होती है, जिससे सबको फ़ायदा होता है। ये बाजमात नमाज के बारे में बात हो रही है। नमाज बाजमात से बतौर ख़ास जुमा और ईदीन के नमाज़ों से मुसलमानों में इज्तिमाइयत का शऊर पैदा होता है। जब मुसलमान रंग और नस्ल, इलाके और तबके के इम्तियाज़ात से बेनियाज होकर शाने से शाना मिलाकर एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो इससे इनके दरमियान फ़िक्री वहदत के साथ साथ अपनी मसावात का एहसास भी पैदा होता है। इज्तिमाई शक्ल में नमाज पाने वाले अमाल की कैफियत इनफरादी अमाल के मुकाबले में ज़्यादा मौसर होती है। इसलिए इज्तिमाई नमाज का सवाब इनफरादी नमाज के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा होता है। नमाजियों को मस्जिद में आते जाते देख कर बेनमाजियों को तरगीब व तहरीज़ होती है कि वो भी नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। नमाज में इमाम का तकर्रुर और इसकी पैरवी इज्तिमाई
नज़्म व ज़ब्त का शऊर पैदा करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में ना पहुंचने वाले अफराद के लिए फ़रमाया था कि जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, अगर मुझे इनकी बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं इनके घरों को आग लगवा देता। बेहरू नमाजें कौन सी हैं? ठीक है, यहाँ पे आएगा नमाज की अदायगी के मुतज़क्किरा वाला फ़वाइद और समरात आज हमें क्यों हासिल नहीं होते? वो और फरमाइए, हम में से कितने अफराद हैं जो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं, उनके कलमात और उनके माना मफ़हूम से आशना है, नमाज में हुज़ूरी कर्ब से बहरावर हैं, नमाज के अहम तीन मकसद से बखूबी आगाह हैं। कुरान मजीद में नमाज के बारे में इरशाद बारी ताला है। सूरह अनकबूत की 45 नंबर पे आयत है। तर्जुमा है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। दरअसल हम आज हमारी नमाजें बेहकीकत हैं, ऐसे ही जैसे कोई फूल बगैर खुशबू के या जिस्म बगैर रूह के। आगे रोज़ा आ जाता है। रोज़ा जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आज हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने नमाज के फ़वाइद के बारे में और इसके बेनमाज रूहों के बारे में, रूह नमाजियों के बारे में, रूह नमाज़ों के बारे में और इंसानी अज़मत का ज़ामिन अक़ीदे के बारे में, नमाज के बारे में, नमाज की ताकीद के बारे में, इन सारों के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको समझ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।